Good evening, everyone. काय अरे जेवढं शिकवलंय तेवढं करते ना. अगं पण विचारायला काय होतं तुझं? तुझं लक्ष कुठे होतं? कुठे होतं? बोल. Okay, last time we have started. Last time we have started with the conductivity, and we have done some numerical also. Today we will start with the variation of conductivity. मैंने आपको बताया था ना, there is a correction. Variation of conductivity with the concentration and variation of molar conductivity with the concentration that we have to study now. ठीक है? So first of all, we will start with variation of conductivity with concentration. ठीक है, कल मॉर्निंग में लेक्चर रहेगा बच्चों. आज जरा मेरे को ठीक नहीं था इसलिए नहीं रखा. मॉर्निंग में भी रहेगा कल और इवनिंग में भी रहेगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट योर लेक्चर विल बी देयर एवरी मॉर्निंग 10:30 to 12 ऑलवेज. कभी कुछ ऐसे हुआ इन केस तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज मॉर्निंग में तो लेक्चर रहेगा ही 10:30 to 12. ओके. Variation of conductivity with the concentration. Last time we have seen what is conductivity. K, correct? अभी देखो, concentration increases means dilution decreases. Yes or no? Concentration and dilution एक दूसरे के opposite है. अगर मेरे पास शक्कर का पानी है, मैंने उसके अंदर और पानी डाल दिया तो diluted हो जाएगा ना. Means concentration अगर increase होता है तो dilution decrease होता है. Can I say volume increases? All these three words are okay, correct? So what I will say on dilution, अभी खाली ये MCQ में पूछते हैं, बाकी कुछ इसमें इतना कुछ great नहीं है. ठीक है, what they have said over here कि as dilution increases conductivity of the solution also increases. But ये आपका key point है, इतना ही. ठीक है, as the dilution increases conductivity also increases. एक मिनट, मैंने शायद कुछ अलग बोला. On dilution determine number of this. or decrease in the conductivity, उल्टा बोल दिया, sorry. As the dilution increases conductivity decreases. This you have to remember. This is the key point. Okay, so what is the reason behind this? As आप reason क्या दोगे? Number of ions per unit volume decreases. कल हम लोगों ने किया था per unit volume molar conductivity. In that we have positive and negative cations and the anions. Am I right? So when you are having positive cations and the anions, और अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा? ये जो आयंस थे इसके अंदर वो बाहर निकल जाएंगे, and because of that conductivity decreases. सिर्फ ये key point है. And what is the reason? As the concentration increases, dilution decreases, means volume increases. And on increasing the dilution or on decreasing the concentration, what I said, on increasing the dilution or on decreasing the concentration, conductivity of your solution decreases. What is the reason? The number of ions per unit volume decreases. बस इतना ही है और बाकी कुछ नहीं है. ठीक है? Rather, if we'll talk about variation of molar conductivity, with concentration, इसमें उल्टा होता है. ठीक है, molar conductivity is directly proportional to the volume. So what they have said, as the molar conductivity increases, or you can say concentration increases or dilution decreases, या उल्टा बोलो, as the dilution increases, ठीक है, dilution increase होगा मतलब volume increase होगा, molar conductivity भी increase होगा. So what is the reason behind this? Reason is that उल्टा बोलने का भी, number of ions per unit volume increases. Means what is happening over here? ये जो per unit volume में ions थे, molarity मतलब आपका concentration increase हो रहा है, because of that number of ions are increasing over here,
and because of that molar conductivity also increases. तो कैसे याद रखना है? molar conductivity is directly proportional to volume. ऐसे एक उल्टा भी एक सीधा भी, ऐसे याद रखने का, ठीक है? So it is directly proportional to the volume, correct? So this is the reason behind that. But it is the case only in the case of strong electrolyte. If we talk about molar conductivity, it will increases only in the case of strong electrolyte. For the weak electrolyte ये गड़बड़ हो जाता है, because if you are going to do over here infinite dilution. What is infinite dilution? If I'm using the term over here infinite dilution means, can I say zero concentration? करेक्ट. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन. मेरा बहुत थोड़ा सा सॉल्ट है, एक मुट्ठी नमक मैंने लिया और जाके मैंने समुद्र के अंदर डाल दिया, आप क्या बोलोगे? पूरा पानी खारा हो गया? नहीं ना. You will say it is infinite dilution means zero concentration. So when you do infinite dilution means eta gets converted into eta naught. What is this eta naught? It is the molar conductivity at infinite dilution or zero concentration. This is applicable only for strong electrolyte, not for the weak electrolyte. So there is a graph called as eta is equals to eta naught minus a into square root of c. तो जब आप ग्राफ बनाओगे, see the graph how it is. For the strong electrolyte it will just go ऐसे straight, but for the weak electrolyte you cannot find it out, ऐसे कैसे भी चला जाता है. So for the weak electrolyte it is very difficult to find out the molar conductivity at infinite dilution. You can find out the molar conductivity at infinite dilution for the strong electrolyte, but not for the weak electrolyte. So what is the graph? It is eta to eta naught and it is square root of c. तो ये आपका जो ग्राफ है it is for strong electrolyte, बट ये वाला जो है it is for weak electrolyte. तो अभी सवाल ये था, क्योंकि देखो अभी कैसे हो रहा है, in the case of strong electrolyte already number of ions are more, so कहाँ पे भी किधर पे भी घूमे it is fine, ठीक है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता. बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी नंबर ऑफ आयंस आर लेस, और उस पे भी अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो आयंस कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इतना समझ आया सबको अच्छे से? पहले इतना बोलो. इज इट वेरी क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, कंडक्टिविटी क्या होगा? इट विल डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन. बराबर है. मोलार कंडक्टिविटी कैसे याद रखने का? ये वाला याद रखो. मोलार कंडक्टिविटी ऐसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एक उल्टा वी एक सीधा वी. करेक्ट. एक मिनट, मुझे किसी ने क्या लिखा है? ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग द रीजन. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर? मोलार conductivity why it will decrease? Because number of ions per unit volume decreases. See, yesterday we have seen molar conductivity, so we have talked about the number of ions in the per unit volume or dissolved electrolyte in the per unit volume. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव था. अभी आपने इसके अंदर और पानी डाला, देखो एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर थोड़ा सा पानी है, आपने ऊपर से जोर से पानी डाला तो क्या होगा? जो बचा कुचा पानी था वो भी बाहर आ जाएगा ना, जोर से डालेंगे तो. वैसे ही यहाँ पे होता है, number of ions per unit volume decreases and because of that conductivity of your solution decreases. But इस केस में उल्टा होता है, molar conductivity increases with increase in the volume. Is it okay कन्हैया? Don't get confused. खाली ये MCQs में आता है तो बिल्कुल टेंशन मत ले लो, खाली इतना याद रखने का, ये दो स्टेटमेंट बस. बट अभी मैंने क्या बोला? अगर मैं पानी डालती गई तो मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा. इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि मुझे सॉल्ट कहाँ है पता ही नहीं चलेगा. बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में दैट इज नॉट एन इशू. अभी आप सबको पता है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ऑलरेडी नंबर ऑफ आयंस आर मच मोर. करेक्ट. So in that case what is happening? Infinite dilution is okay for the strong electrolyte, or you can say zero concentration, because already number of ions are more. तो अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ का मुझे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ तो पॉइंट दिख रहा है. But for the weak electrolyte, it is impossible because already number of ions are less. So it is very difficult for us to find out that. ठीक है? उसको किसने solve किया पता है? There was one scientist whose name was Colrosh. ये बहुत important है. Colrosh law. Colrosh law of independent migration of ions for
वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत बार आता है ये एग्जाम में, ठीक है। कोलरॉश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखो कोलरॉश लॉ क्या बोलता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion migrates independently of its co-ion and independent migrate of co-ion and contributes to the total molar conductivity of an electrolyte. मैं explain करती हूँ, don't worry, of an electrolyte irrespective of nature of ions with which it is associated। ये आपका लॉ है, क्या बोला है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मैंने कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो उन्होंने क्या बोला है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। ये बहुत बड़ा सा ड्रम है या बहुत बड़ा समुंदर है, इसके अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, पॉजिटिव था और नेगेटिव था, तो जैसे ही डालोगे इट विल मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन, ठीक है। बट वो क्या इससे बाहर निकल गया, नहीं ना, इट इज देयर इनसाइड दैट। So it contributes to the total molar conductivity of an electrolyte. It will contribute, भले थोड़ा ही क्यों ना हो, it will contribute to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of nature of ions with which it is associated. उसके आजू बाजू कौन है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, बट इट विल कॉन्ट्रीब्यूट। मतलब हमारा मुद्दा क्या था यहाँ पर बोलने का, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बहुत है, तो अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट इस केस में ऑलरेडी नंबर ऑफ आयंस कम है और आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो आयंस कहाँ के कहाँ जाएंगे। तो कोलरॉश ने उसके ऊपर कैसे क्रॉस किया, ही सेड दैट yes, it is absolutely right, ions are very less but they are contributing, ठीक है। सपोज किसी का बर्थडे है और 100 लोग हैं और 100 रुपया जमा करना है, तो एक जन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 रुपया होगा, वो ना के बराबर है ना, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो है। वैसे यहाँ पर क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। वो टूट गए, वो कहाँ पे जाते हैं पता नहीं, दे विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली बट they will contribute to the total molar conductivity of an electrolyte। और कोई दे या ना दे, वैसे यहाँ पे क्या है, नेचर की कुछ भी हो, जिसके आजू बाजू में कौन सा भी आयंस रहने दो, it will associated in that, समझा। तो that is called as कोलरॉश लॉ। और उसको लिखते कैसे है, eta naught is equals to eta naught plus lambda naught माइनस, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं n plus and n minus। So what is this lambda naught or eta naught? It is called as molar conductivity at infinite dilution और zero concentration, ठीक है। और अगर मैंने lambda naught plus and lambda naught minus लिखा, तो ये क्या है, these are the molar conductivities of cations and anions, ठीक है, cations and anions at infinite dilution और zero concentration respectively, ठीक है। और ये क्या है, n plus and n minus, बोलो, number of moles of cations and anions respectively। तो ये आपका कोलरॉश लॉ हो गया। मतलब कैसे लिखते हैं, eta naught is equals to n plus number of moles of cations lambda naught of positive plus n minus lambda naught of negative, इसको बोलते हैं कोलरॉश लॉ। इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये सबको समझा क्या, पहले इतना बोलो, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज कोलरॉश लॉ।
यस। फर्स्ट टेल मी, किसी को कुछ डाउट है, कुछ ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे दैट आई विल टेल यू इन सम टाइम, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं पता है, दे विल गिव यू 2-3 अलग अलग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग से यूज करके हम लोग वीक का निकाल सकते हैं। ऐसा ट्रिक है उसका, कॉलरॉश ने वो ट्रिक बताया था। अभी जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, तो वो टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए अभी इसका कंफ्यूजन मत करो। ये समझा कि कॉलरॉश ने कैसे उस चीज को डिफेक्ट किया। he said that yes it is right, strong electrolyte के ions दिखते हैं, weak electrolyte के नहीं दिखते हैं, so at the infinite dilution it is very difficult, but he said that वो बाहर तो नहीं गए ना, ions are contributing, भले थोड़ा ही क्यों ना हो, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और आजू बाजू में कोई हो या ना हो फिर भी वो माइग्रेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कॉलरॉश लॉ। इज इट वेरी क्लियर बच्चों? आई होप नो कंफ्यूजन। किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क प्लीज, और शुड आई प्रोसीड? चलो हेडिंग लिखो अभी। ओके अभी वो जो वेरिएशन वाला था वो टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो। राइट ऑन द हेडिंग कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट लिखो इतना, मैं बोलती हूँ स्टेटमेंट, ये दिखेगा नहीं इधर से ठीक से, मेरा न्यू पेन है ना तो थोड़ा लाइट चल रहा है। दिख रहा है क्या ठीक से? हाँ ठीक है, ओके। Write down Colrosh law of independent migration of ions for weak electrolyte and mark this as important। important, इसके ऊपर नीट जेडबलई में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑल्सो अपना 12th में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने आपको भी 3-4 चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना, वो छोड़ने का नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने का। अभी ये हो जाएगा ना तो इसके मैम ऊपर हेडिंग क्या लिखना है? ये रहा कॉलरॉश लॉ। रुको स्पेलिंग बोलो क्या कॉलरॉश लॉ का, ये रहा KOHLRAUSCH, कॉलरॉश, KOHLRAUSCH, कॉलरॉश, लॉ ऑफ independent migration of ions, independent migration of ions for weak electrolyte, for weak electrolyte। लिखा? चलो लिखो। the law states that, and very important है, ये सब लोग याद ही कर लेंगे। the law states that at infinite dilution, the law states that at infinite dilution each ion migrates independently, each ion migrates independently of its co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte, to the total molar conductivity of an electrolyte, to the total molar conductivity of an electrolyte, irrespective of nature of ions, irrespective of nature of ions with which it is associated.
with which it is associated. उसके बाद लिखो eta naught is equals to n plus lambda naught positive plus n minus lambda naught negative. ये लिखो, माइनस इधर है, हाँ सॉरी इधर चला गया, वो लाइन बनाने में चला गया, ऊपर है प्लस और माइनस. इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट. अभी अपने को लगेगा थोड़ी देर में, आपको समझ में आ जाएगा. वह ये लिखो वेर eta naught is equals to molar conductivity at infinite dilution or zero concentration, lambda naught positive lambda naught negative वाले molar conductivities of cations and anions at infinite dilution or zero concentration respectively. और ये n plus n minus क्या है, number of moles of cations and anions respectively. लिखोगे इतना, समझा ये बच्चों? यस मैम. हाँ ओके, राइट डाउन. हो जाएगा तो डन बोलो, फिर मैं आगे बताती हूँ, एप्लीकेशन बताती हूँ इसके. वैसे नीचे नीचे का ये पूरा लिखना है ना पैराग्राफ? हाँ हाँ, यहाँ से हम लोग वेयर लिख रहे हैं ना, वेयर. ये पूरा थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, तुम लोग को शायद प्रॉब्लम हो जाए. eta naught is equals to molar conductivity at infinite dilution or zero concentration. कोलरॉश लॉ सबको समझाना अच्छे से, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है. मिस कैमरा ऊपर करो. हाँ हाँ ओके ओके, दिख रहा है? डिक्टेट करूँ क्या? मैं तो चाहिए तो पीछे वाले पेज पे अच्छे से लिखती हूँ, समझेगा कि लिखूं? कंडक्टिविटीज बोर्ड रहता है तो मजा आता है, बड़ा बड़ा रहता है ना. इधर क्या बुक में 10 बार पेज टर्न करो. मिस लास्ट लाइन क्या लिखा है? हाँ, n plus and n minus is equals to number of moles of cations and anions respectively. Number of moles of cations and anions respectively. ये नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे बेस पे जो नॉट लिखा है, इट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ओके. आई होप सबको अच्छे से समझ में आया. आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी. बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है. ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ऐसे छोड़ना मत ये सब चैप्टर्स. एक बार पढ़ लोगे ना, बहुत अच्छे से आ जाएगा. डन एवरीबॉडी? ओके ठीक है, अभी मैं पढ़ाती हूँ आपको एप्लीकेशन. अभी सब अपने पेन्स डाउन करो एंड जस्ट पे अटेंशन. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ? ठीक है, अब कैसे होता है एग्जाम में और सब जगह पर आपको ना कुछ चीजों के ईटा नॉट दिए रहेंगे. जैसे कि आपको दिया है ईटा नॉट ऑफ HCl, फिर आपको दिया हुआ है ईटा नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट, फिर आपको दिया हुआ है ईटा नॉट ऑफ NaCl. ये चीजें दी हुई है. ठीक है, these three things will be given. 3 चीजें आपको दी हुई रहेंगी. it will be given always. मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कैसे करना है. ठीक है, and they have asked you what is the molar conductivity at infinite dilution for acetic acid is equal to question mark. अब देखो ये 3 चीजें देखकर तो मुझे एसिटिक एसिड नहीं दिख रहा. एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये देखो याद है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये याद आया, हम लोगों ने बफर में किया था. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, तीनों सब चीजें मेरे पास स्ट्रॉन्ग है. और मुझे पूछा क्या है, वीक एसिड का मोलार कंडक्टिविटी पूछा है. तो कोलरॉश ने क्या किया, he has used these 3 terms
एंड he has taken out the answer for this. कैसे निकाला देखो, हमेशा याद रखो पहले स्टार्टिंग की दो चीजों को ऐड करना है, थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं देते हैं। नीट जेडब्ल्यू में दे विल जम्बल अप, अरे क्या हो गया कैमरा को, हाँ नीट जेडब्ल्यू में दे विल जम्बल्ड अप, मैं आपको वही बताती हूँ कैसे, बाद में बताती हूँ। अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, फर्स्ट टू ऐड करना है, थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट करना है। देखो मुझे ये आंसर चाहिए, जस्ट पे अटेंशन। I will write down your eta naught of HCl plus eta naught of CH3COO Na minus eta naught of NaCl। क्लियर? अब देखो हाँ, इसको ब्रेक करेंगे। अभी पहले लिखा था हम लोगों ने, तो इट इज लैम्बडा नॉट ऑफ Na plus lambda naught of Cl minus. All are agreed with this? Yes or no? Na plus क्यों लिखा मैंने? I'm so sorry. Lambda naught of H plus lambda naught of Cl minus. Is it okay? ये सबको समझा? अभी फिर ऊपर लिखा था ना फॉर्मूला, ब्रेक कर दिया। क्लियर? चलो प्लस, ये बड़ा वाला प्लस है, इसको कैसे लिखेंगे, लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो बच्चों? यस हेलो, करेक्ट, ओके। अभी ये मेरा माइनस, बड़ा वाला माइनस, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब ओपन करो ब्रैकेट अपना, इट विल बी लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्बडा नॉट ऑफ Na। बहुत कम दिख रहा है क्या लाइट? मुझे कैसे लग रहा है लाइट बहुत कम है, दिख रहा है क्या ठीक से? यस तो मैम। लाइट बहुत कम लग रहा है ना? कैसे वो स्पॉटलाइट कैसे करते हैं जरा बताओ, बराबर है। स्पॉटलाइट करते हैं ना कुछ तो, बराबर है? अच्छा, हाँ मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो देखो अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस, अभी क्या कैंसिल होगा देखो, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस Cl और ये कैंसिल हो गया। अच्छा टॉर्च चालू करूं, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस बचा प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस बचा। अगर आप गौर करोगे तो क्या ये ईटा नॉट ऑफ CH3COH है? यस और नो? ये बचा ना मेरे पास, करेक्ट। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ईटा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड इज नथिंग बट ईटा नॉट ऑफ HCl प्लस ईटा नॉट ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस ईटा नॉट ऑफ NaCl। तो अगर मेरे पास इसका आंसर x है, इसका आंसर y है, इसका आंसर z है, तो x प्लस वाई ऐड करूंगी और उसमें से z माइनस करूंगी तो मुझे एसिटिक एसिड का आंसर मिल जाएगा। समझा? ये है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच। अब नीट और जेडब्ल्यू में क्या करते हैं पता है, ये सीक्वेंस वो चेंज कर देंगे। दे विल राइट डाउन ईटा नॉट ऑफ HCl, फिर लिखेंगे ईटा नॉट ऑफ NaCl और फिर लिखेंगे ये, अभी देखो ना लॉजिक यूज करो, लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस। तो देखो ना Cl माइनस पॉजिटिव होके कैंसिल नहीं हो रहा है और मेरे आंसर में कहाँ पर भी Cl है ही नहीं, मतलब मुझे किसी भी हालत में Na को और Cl को बाहर निकालना है। यस और नो? मुझे मेरा ये इक्वेशन अरेंज ही ऐसे करना है कि मेरे आंसर में क्या क्या नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए और Na नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर आपको 12th में अरेंज करके ही देते हैं, फर्स्ट टू ऐड करने का, थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट करने का, बट JW और नीट में आगे पीछे दे देंगे, तो देयर इज अ लॉजिक। तो आप क्या करोगे, पहले ये दोनों लिखोगे बाद में ये लिखोगे। समझा अभी? यस मैम। चलो अभी इतना लिख लो पहले एप्लीकेशन, फिर मैं आगे आपको थोड़ा सा और नंबर ऑफ मोल्स वाला बताती हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, क्योंकि मैं ना टॉर्च चालू करती हूँ, बराबर बोलो। किधर गया मेरा टॉर्च? अरे मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है,
ये बंद हो गया रे टॉर्च, ये जूम मिस वो ओपन किया आपने तो। शायद ऊपर पकड़ा है ना, इसके लिए। अच्छा ऐसा है क्या? पर तुम लोग को दिख रहा है क्या ठीक से? मिस मेरे को थोड़ा बहुत सा लाइट ब्लर दिख रहा है। मेरे मैम को पेन। ब्लर नहीं, मेरे नहीं को बहुत मिस लाइट बराबर है मिस, नहीं मिस बराबर है। दिख रहा है ना। मेरे को थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, शायद मेरे पेन की वजह हाँ से। मिस वही, मिस हर बार दिखता है ना, वैसा नहीं है। हाँ हाँ वही, शायद ये पेन नया है ना, इस वजह से उसका निब थोड़ा न्यू है इस वजह से। चलो ठीक है, लिखो एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, और ये लिखो एसिटिक एसिड का फाइंड आउट करने का अपने को, और ये पूरा अच्छे से लिखो यहाँ तक, फटाफट लिखो। और कुछ भी नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो, एकदम कहाँ से फील लिखना? फ्री टू आस्क। हाँ बेटा, क्या? कहाँ से लिखना? हाँ लिखना है, फिर क्या लिखो? कहाँ से? हेडिंग एप्ली क्या है? इधर से गिवन के नीचे से लिखना है। हाँ गिवन के नीचे से लिखना है, यस यहाँ से लिखना है। ये है ना, ये लिखो पूरा। यहाँ पे माइनस साइन है ना, दिस इज माइनस साइन। ये 3-3 मार्क्स के लिए सम आता है, पता है? दे विल गिव यू HCl का 273.1, इसका दे दिया 289, सपोज इसका दे दिया 373, और पूछते हैं कि व्हाट इज द इथेनॉल ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहले प्रूफ करने का 2 मार्क्स मिलता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का 1 मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स का सम आता है। नीट जेईई में 4 मार्क्स के लिए आता है, ये देखो कितना इजी है। मिस तो जो हमें मतलब दिया नी होगा वो ब्रेक करने का ना, कैटायन और एनायन में, यस फिर वो अपने यस आप यस कैंसिल हो जाएगा ना। यस। अपने को ढूंढने का ही कैसे, देख अभी अपने को क्या पूछा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में मुझे 2 आयन दिख रहे हैं, एक तो एसिटेट आयन है और एक H+ आयन है। तो मुझे कैसे भी करके Cl- और Na को बाहर निकालने का बस। ठीक है, लिखो, हो जाएगा। मिस वो ऊपर अपने बॉक्स में लिखा है वो भी लिखना है ना पहले। यस यस, सब लिखना है। एक मिनट। हाँ यस यस दिवेश, डोंट वरी, हम लोग अभी बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, टेंशन मत लो, विल सॉल्व न्यूमेरिकल आल्सो। ओके मैम। हाँ इजी है, बहुत इजी है, टेंशन मत लो। ये तो एक ये सॉल्व करो, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व फॉर, चलो मैं देती हूँ। NaI दिया हुआ है, ईटा नॉट, ठीक है। फिर दूसरा दिया हुआ है ईटा नॉट ऑफ
AgNO3 और तीसरा दिया हुआ है eta नॉट ऑफ NaNO3। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है eta नॉट ऑफ AgI। विल यू ट्राई? इन दोनों को ऐड करो, तीसरा वाला सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे ही सॉल्व करना है। विल यू डू दिस? Na plus I minus Ag plus NO3 minus Na plus NO3 minus, like this। तो फर्स्ट टू को ऐड करो, थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करो और आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही करना है, ट्राई करो, देखो। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस। लिख रहे हो? नीचे करूँ? कैमरा दिख रहा है ना? अभी हो गया ना सबका? हो गया। ठीक है। ओके, आई होप सबको आ रहा होगा आंसर। ये आया क्या? देखो सबको आंसर, सब कैंसिल हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए? Ag और I चाहिए, है ना? तो अपने को Na निकालने का है बाहर और NO3 बाहर निकालने का। तो इन दोनों को ऐड करो, थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करो, हो गया। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का। यस, करेक्ट। ओके दिवेश, चलो अभी ना थोड़ा सा अलग वाला करेंगे। अलग मतलब सेम ही है, खाली नंबर ऑफ मोल्स उसमें अलग था ना, इसलिए खाली उसका ब्रेकिंग थोड़ा अलग रहेगा। सपोज दे हैव, अभी तक आपने जो किया दैट वाज eta नॉट ऑफ HCl, तो H प्लस और Cl माइनस एक एक ही आयंस बने। देन वी हैव डन eta नॉट ऑफ सपोज NaCl, तो NaCl में भी क्या था? Na प्लस Cl माइनस एक ही आयन बना था, बराबर। बट नाउ वी विल डू हियर eta नॉट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। अभी ये है, तो ये कैसे होता है? यहाँ पे बेरियम का तो एक ही आयन है Ba2 प्लस, बट OH के कितने आयन है बच्चों? 2OH माइनस है ना। तो इसका लैम्डा नॉट कैसे लिखेंगे? eta नॉट ऑफ BaOH ट्वाइस इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे इधर? लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 प्लस है, तो एक ही मोल्स था, सिर्फ क्या डिफरेंस है यहाँ पे? 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस, बस इतना ही डिफरेंस है। समझा? अंडरस्टूड दिस मच? हियर वी आर हैविंग 2 आयंस, तो आपने सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा। इस केस में क्या था? H plus and Cl minus 1 ions were there. Here also Na plus and Cl minus 1 ion were there. Correct? So here we are having Ba2 plus only 1 ion, but OH minus there are 2 ions. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा, बस इतना ही डिफरेंस है। Is it very clear to everybody? ओके मैम। पक्का समझ आ गया?
अच्छा चलो, अगर मैंने बोला ईटा नॉट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैसे लिखेंगे बोलो, ये लिख के बताओ। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज रहता है, मिस इसलिए वो आपने हर लिखा एक ना। एलिमेंट का अपने को याद रखना पड़ेगा। नहीं बेटा, याद नहीं रखने का, ये देखो ना BaOH, अभी OH ट्वाइस है तो बट ऑब्वियसली Ba के ऊपर +2 चार्ज रहेगा। वो स्कूल में क्या होगा देखो, Na+ NCl-, तो न्यूट्रल होने के लिए इसका +1 इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका -1 इससे मल्टीप्लाई होता है, तो NaCl बनता है। 9th स्टैंडर्ड में था देखो, यस मिस। समझा? हाँ करेक्ट है कन्हैया। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो ना, ये 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब इसके ऊपर -1 चार्ज रहा होगा। यहाँ पे 2 है, मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज रहा होगा, और पहले वाला हमेशा प्लस रहता है, दूसरा वाला हमेशा माइनस होता है। तो ये कैसे लिखेंगे अभी, लैम्बडा नॉट ऑफ Ca2+, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लैम्बडा नॉट ऑफ Cl-। क्यों 2 लिखा, क्योंकि मेरे पास 2 क्लोरीन था। अच्छा एक और का लिखो, क्या लिखेंगे, कौन सा दोनों तुम लोग को, Al2SO4 थ्राइस, चलो इसका लिख के बताओ। Cu नहीं बच्चा, Ca है दिवेश, वो Ca है बेटा, Ca, इट इज Ca। करेक्ट है, आंसर करेक्ट है तुम्हारा, यस। इसका लिख के बताओ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 लिखा है, मतलब सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज रहेगा। यहाँ पे 3 है, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज रहेगा। इसका बताओ, लैम्बडा ईटा नॉट कैसे लिखेंगे। आई होप आपको समझ रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इजी सम्स है बच्चों। आपने ये छोड़ा मतलब लाइफ में सब बर्बाद तुम्हारा, ये चीजें बिल्कुल छोड़नी नहीं है। और कॉलेज में ना आपको ये सब ऐसे धड़ाधड़ पढ़ा देंगे, ठीक से पढ़ाएंगे भी नहीं। कैसे लिखा है इसका, 2 लिखेंगे ना, 2 लैम्बडा नॉट ऑफ Al3+ प्लस 3 लैम्बडा नॉट ऑफ SO4 2-, ऐसे लिखा सबने। यस मिस। यस मैम। ओके, सबको समझ आ गया अच्छे से हाउ टू डू दिस। चलो अभी कॉलरॉश लॉ का एप्लीकेशन समझ गया, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर सबके ऊपर सम्स लेती हूँ, ठीक है, एक और टॉपिक सिखा देती हूँ। अभी देखो एक और है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिटन एज ईटा अपॉन ईटा नॉट, ये एक फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है, ये अनदर फॉर्मूला है। इट इज अ रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी टू द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अभी अल्फा तो तुम लोग को पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट Ka is equals to अल्फा स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। चलो कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पहले ध्यान दो बाद में लिखो। अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ईटा अपॉन ईटा नॉट का स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा नॉट। यहाँ तक सबको समझा। चलो नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, ईटा स्क्वायर अपॉन ईटा नॉट स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लो, ईटा नॉट माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा नॉट स्क्वायर। इतना समझा सबको, से यस और नो। हेलो, ये देखो अल्फा की जगह क्या रखा, ईटा अपॉन ईटा नॉट स्क्वायर हो गया इंटू C, 1 माइनस अल्फा की जगह क्या रखा, ईटा अपॉन ईटा नॉट बराबर इसका स्क्वायर हो गया, ईटा स्क्वायर ईटा नॉट स्क्वायर इंटू C, ये बड़ा वाला डिवाइडेड, और ये एलसीएम लेंगे ना, इधर जाएगा माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर? यस मैम। किसने पूछा था ये रिपीट वाला, सृष्टि समझा? हाँ अभी देखो तुम लोग को मैथ्स का रूल तो पता ही होगा, ईटा स्क्वायर अपॉन ईटा नॉट स्क्वायर इंटू C इंटू, ये ईटा नॉट ऊपर जाएगा ना अभी, और नीचे क्या हो जाएगा, ईटा नॉट माइनस ईटा, बोलो बराबर है कि नहीं, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, क्या कैंसिल हो गया, दिस एंड दिस कैंसिल्ड, एक कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज माय आंसर, ईटा स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय ईटा नॉट, और ब्रैकेट में आ गया
ईटा नॉट माइनस ईटा, ये है आपका KA। ये भी एक फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चों को ना ये चीजें मालूम नहीं होती है और फिर बहुत गड़बड़ करते हैं, एग्जाम में सॉल्व नहीं करते। 4 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पता है कितना इजी है, देखो कितना इजी है। खाली अल्फा भी पता रहेगा तो ये आंसर तुम लोग खुद निकाल सकते हो, लिख लो ये। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट and this is also important. If you want, you can write down alpha is degree of dissociation and क्या था अपना Ka क्या, जल्दी बताओ क्या है? dissociation constant for A लिखा है मतलब acid. Clear everybody? प्लीज पूछो। हाँ बच्चों, आप लोग ऐसे एकदम बाउंसर मत चले जाना, नहीं समझेगा तो पूछ लो। इसके बाद मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को ना सेल कांस्टेंट सिखा देती हूँ, उसका फॉर्मूला एक मिल जाएगा अपने को, तो हम लोग फिर सम कर सकते हैं। हाँ, और फिर अपना एक टॉपिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी चालू कर सकते हैं। फिर ये टॉपिक के ऊपर अपने न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कल से चालू करेंगे, कल या कल रात से। If you're done, please let me know. Okay. मिस चलो अल्फा सबका को हो क्या गया? बोलेंगे, वही ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? हाँ, yes, अल्फा is degree of dissociation, Ka is dissociation constant. I hope this much point is very clear to you all. Should I proceed? Done everybody? Yes, ma'am. Okay. चलो अभी सबका हो गया ये पार्ट। अभी मैं एक टॉपिक सिखा देती हूँ, फिर हम लोग आराम से ना न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है we will do here सेल कांस्टेंट। सेल का मतलब क्या है बोलो यहाँ पे? मशीन ना, जिस मशीन में हम लोग हमारा सोल्यूशन डालेंगे, जिसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, मैं बहुत ऐसे आपको फिजिक्स वाले इसमें जाके नहीं सिखा रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ व्हाट इज सेल कांस्टेंट। देखो ये मेरा बीकर है, इन दिस देयर आर 2 इलेक्ट्रोड, उसको कनेक्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसका मैंने कंडक्टिविटी, सपोज यहाँ पे HCl लिया था, ठीक है, HCl लिया था, HCl का कंडक्टिविटी चेक किया, रेजिस्टेंस चेक किया, सब कुछ मतलब पूरा कनेक्ट करके रखा था उसको। आई हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, इस सेल को खाली किया और इसकी जगह पर अभी KCl डाल दिया। व्हाट आई हैव एडेड? KCl। मुझे बताओ व्हाट इज कॉमन इन दीज टू सॉल्यूशंस? सेल इज कॉमन ना, यस और नो? इलेक्ट्रोड्स आर कॉमन, सेल इज कॉमन, मतलब मेरा बर्तन सेम है, सिर्फ क्या सेल अलग मतलब है? सिस्टम ना अपना? हाँ, सेल मतलब ये जो मशीन है, ठीक है, ये जो मशीन है अपना, इट इज कॉल्ड एज सेल। जैसे आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दो तो वो सेल बन गया ना, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो सेल हो जाएगा, समझा? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना बर्तन सेम है, पहले बर्तन में मैंने क्या डाला, HCl डाला और उसको सब कैलकुलेशन करके फेंक दिया। अब दूसरा सोल्यूशन डाला, फिर इसको फेंक दिया, तीसरा सोल्यूशन डाला, फिर इसको फेंक दिया, चौथा सोल्यूशन डाला। मतलब मैं चेंज क्या कर रही हूँ? आई एम चेंजिंग माई सोल्यूशन, बट वॉट आई एम नॉट चेंजिंग, आई एम नॉट चेंजिंग माई सेल, आई एम नॉट चेंजिंग माई इलेक्ट्रोड। इसके लिए इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट।
समझा? और सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, इट इज नथिंग बट लेंथ बाय ए। अभी ये लेंथ बाय ए है क्या? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इट इज द रेशियो ऑफ distance between the electrode and the cross section area of electrode. आया समझ में? what is cell constant? Cell constant is represented by b, small b. ठीक है? it is nothing but the ratio of what? ratio of distance between the electrode, मतलब L, ये जो L है, it is the distance between the electrode and area of cross section of electrode. इतना clear? अब मुझे बताओ कि B का यूनिट क्या आएगा? अगर ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है तो यूनिट क्या आएगा B का? पर मीटर। वेरी गुड, पर मीटर या पर सेंटीमीटर आएगा। ऑल आर अग्रीड? अच्छा अब देखो, हाँ मुझे ये पता है K इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A, ये सही है कि नहीं? पहले इतना बोलो, यस और नो। कभी किया था ये? परसों किया था शायद से, याद है? कंडक्टिविटी के टाइम पे। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। पेजेस टर्न करके देख लो। 1/r इंटू L/A, तो मैं L/A की जगह पर B लिखूं तो कैन आई गेट ओवर हियर K इज इक्वल्स टू B/R, करेक्ट? देयरफॉर B इज इक्वल्स टू K इंटू R, R इज रेजिस्टेंस। वापस से यूनिट निकाल लो, क्या आएगा? देखो यूनिट इसका पर ओम पर सेंटीमीटर अगर लिया और इसका ओम लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा यूनिट क्या आने वाला है? पर सेंटीमीटर। आई बात समझ में सबको? बोलो यस और नो। यस मिस। यहाँ पे भी यूनिट देख लो, यहाँ पे भी सपोज मैंने सेंटीमीटर लिखा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, तो आंसर क्या आएगा? पर सेंटीमीटर क्या आएगा? इजी एकदम। सेल कांस्टेंट, समझा? और सेल कांस्टेंट हमेशा हर सोल्यूशन का सेम ही रहेगा। व्हाई विल इट बी सेम? क्योंकि हम लोग अपना सोल्यूशन चेंज कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग दी अपना सेल, तो इट विल रिमेन सेम। समझा? लिखो, चलो हेडिंग लिखो, सेल कांस्टेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। आपके बुक में दिया नहीं है वो बी, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। फटाफट लिखो, सेल कांस्टेंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, ऐसे लिखो बी। पॉइंट नंबर 2 बोलू? बोलो मैम। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of distance between the electrodes, it is the ratio of distance between the electrodes to to the area of cross section of electrode, to the area of cross section of electrode। ये definition है, ठीक है? Therefore B is equals to L/A, therefore B is equals to L/A। लिखो where L is equals to distance between the electrodes and what is A? Area of cross section of electrode। ठीक है? कौन सा वाला? सेकेंड वाला। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इट इज द रेशियो ऑफ distance between the electrodes to the area of cross section of electrode, it is the ratio of distance between the electrodes to the area of cross section of electrodes। इतना ही लिखो पहले, फिर यहाँ पे लिखो therefore B is equals to L/A, where L is equals to distance between the electrode and A is equals to area of cross section of electrode। यूनिट क्या आएगा इसका? पर सेंटीमीटर और पर मीटर। ये लिखा। अब उसके बाद लिखो बट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, बट
K is equals to 1 by R into L by A. Therefore, K is equals to B by R. Therefore, B is equals to K into R. वापस से यूनिट क्या आ गया? पर मीटर और पेन सेंटीमीटर. तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया ना अपना. This is also one formula. B is equals to K into R. ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं. इंपॉर्टेंट है ये भी और ये फॉर्मूला भी. B is equals to L by R. This is also important. ये लिख लो. 1 2 3 4 लाइन लिख लो. What is K? What is K? अरे बाबा बोलो. Conductivity. हाँ correct. K is conductivity. B cell constant. What is R? Resistance. ये तो लिख के रखो. K is equals to conductivity. R is equals to resistance. And B is equals to cell constant. यूनिट याद रखना. पर ओम पर सेंटीमीटर. और क्या था इधर सिखाने का? हाँ यहाँ तक आप लोगों का एक पार्ट कंप्लीट हो गया. अभी हम लोग इसके ऊपर सम्स कर लेंगे जितना भी टाइम है उतना. ठीक है. 5.1 में क्या है? 5.1 लिया है हम लोग का टेक्स्ट बुक में. न्यूमेरिकल से नहीं दिया रे अच्छे से. कुछ भी दिया है सारा सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है. नहीं. R is not resistivity. Resistivity is represented by rho. ऐसा था ना resistivity का साइन. R is a resistance. ओके प्रियंका. देखो परसों लिखा है R is resistance, rho is resistivity, specific resistance. ये हाँ मिस आपका आपने वो नॉर्मल वाला डिफरेंशिएट करके रेजिस्टेंस भी है. बताया था. हाँ हाँ यस. इसीलिए मैंने वो चारों चीजें साथ में पढ़ाई. आपका टेक्स्ट बुक पढ़ना पागल हो जाओगे कैसे भी लिखा है उसमें. और आपका जो G है वो कंडक्टेंस है. K इज कंडक्टिविटी. ईटा इज मोलार कंडक्टिविटी. ईटा नॉट इज मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और क्या पढ़ा? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट. B इज सेल कांस्टेंट. याद रखो. L इज distance between the two electrodes. A is area of cross section of electrode. Okay Priyanka, is it okay? Okay. हो गया सबका? Yes. Okay, चलो अभी न्यूमेरिकल करते हैं. जितने हो जाएंगे 3-4. लिखो क्वेश्चन. तुम लोग ही सॉल्व करोगे. हाँ ये अभी ऑलरेडी किया है तुम लोगों ने. राइट डाउन. कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ. कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ silver iodide at zero concentration. Silver iodide at zero concentration if molar conductivities of molar conductivities of NaI, AgNO3 and NaNO3R. NaNO3R 126.9
133.4 and 121.5 per ohm centimeter square per mole respectively. मतलब NaI का इतना है, AgNO3 का इतना है, NaNO3 का इतना है, respectively at zero concentration. At zero concentration. चलो कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे? पहले तो प्रूफ करेंगे जो ऑलरेडी आपने किया था, याद है थोड़ी देर पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव प्रूव्ड इट ना कि A नॉट ऑफ AgI is equals to eta नॉट ऑफ NaI plus eta नॉट ऑफ AgNO3. किया था ना थोड़ी देर पहले प्रूफ, यस और नो? माइनस eta नॉट ऑफ NaNO3 किया था कि नहीं, पहले इतना बोलो. यस मैम. हाँ, तो वैसे प्रूफ वापस करने का और ऐसे लिखने का बाद में स्टेटमेंट. प्रूफ होने के बाद ये लिखने का देयरफॉर, वापस से लिखोगे वो पूरा, वापस प्रूफ करो एंड देन राइट ऑन देयरफॉर ऑल दीज आर लाइक दिस. तो अभी NaI का वैल्यू कितना है? 126.9 प्लस 133.4 माइनस 121.5 और आंसर आ जाएगा. हो गया, इतना ही समय. आंसर आएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. समझा कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव, जैसे आपने पहले प्रूव किया था, एंड देन उसके नीचे कमेंट लिखोगे देयरफॉर दिस वैल्यू इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दीज टू एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द थर्ड वन एंड यू विल गेट द आंसर. समझा? वापस से लिखो प्रूफ पूरा. ओके, लिख लो, हो जाएगा तो मुझे डन बोलो. मिस तो ये जो आपने ऊपर लिखा है वो लास्ट में आएगा क्या? यस, ये जो लिखा ना ये एकदम लास्ट में आएगा. पहले प्रूफ करो. कैसे प्रूफ करेंगे? eta नॉट ऑफ NaI प्लस eta नॉट ऑफ AgNO3, ठीक है, माइनस eta नॉट ऑफ NaNO3. फिर इसको ओपन करके क्या था इधर? लैम्बडा नॉट ऑफ, इधर क्या, लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ I माइनस. ऐसे वाला पूरा प्रूफ करोगे तो आपको ये आंसर आएगा. उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना है. समझा? यस समझा मिस. कि नहीं समझा? हाँ ठीक है, लिखो पूरा, वापस लिखो. हाँ, तो सब अधूरा रह जाएगा. कैमरा ऊपर देखो. मिस यहाँ पे Ag प्लस आएगा ना? किधर पे? AgNO3. हाँ हाँ, यस यस, Ag प्लस NO3 माइनस. हाँ, सबका आंसर भी आ गया, बराबर है, करेक्ट.
138.8 करेक्ट आंसर। प्रूफ करके किया ना, लेकिन चलो अभी एक सम में तुम लोग को दूंगी, तुम लोग खुद ही सॉल्व करो। हाँ करेक्ट। रेडी फॉर द नेक्स्ट सम? सबको आया आंसर? आंसर इज 130। कहाँ लिखा मैंने? हाँ तो लिखा था 138.8 per ohm centimeter square per mole. This is the answer. डन मैम। Okay, everybody got the answer. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का मैं हेल्प नहीं करूंगी, यू हैव टू सॉल्व। राइट डाउन। कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटीज। कैलकुलेट molar activities at zero concentration for CaCl2 and सोडियम सल्फेट, दोनों का निकालना है, ठीक है? CaCl2 and सोडियम सल्फेट। चलो लिखो। व्हाट इज गिवन? मोलार आयोनिक conductivities of Ca2 plus, Cl minus, Na plus, SO4 2 minus ions are molar ionic conductivities of calcium chloride sodium sulfate are 104, 76.4, 50.1, 159.6 per ohm centimeter square per mole। चलो बताओ कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है। ईटा नॉट ऑफ CaCl2 निकालने का है ना, इसको पहले ब्रेक करो। एक मैं बताती हूँ, एक तुम लोग करो। कैसे ब्रेक करेंगे? लैम्बडा नॉट ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस। Ca2 प्लस का वैल्यू कितना है? 104 प्लस 2 इंटू Cl माइनस का आंसर कितना है? 76.4। हो गया सम सॉल्व। समझा? इजी है बच्चों? हेलो यस यस मैम। सबको समझा? सबको समझा? देखो कैल्शियम को कैसे ब्रेक किया, ऐसा तो कैल्शियम का वैल्यू लिख दिया। आयोनिक मोलार कंडक्टिविटी बोला ना, तो 104 ये 2 लिखेंगे क्योंकि 2 Cl था। इसको कैसे लिखेंगे? 2 सोडियम लिखेंगे, बराबर, और सल्फेट एक लिखेंगे। बस सॉल्व करो। चलो आंसर बोल दो मुझे फटाफट से। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ऐसे एकदम डिफिकल्ट नहीं लग रहा हो आपको। आराम से करो, कोई घाई नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। मिस बट आपने बोला था कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना? हुआ ना क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या? Ca के ऊपर कितना चार्ज है? Ca2 प्लस, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। इसके लिए यहाँ पे 2 Cl था, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे ना। मैंने ये समझाया कि ये कैसे आया CaCl2। समझा क्या? अच्छा हाँ मैं समझा। हाँ। अभी ये सोडियम सल्फेट कैसे करेगा देख। अभी ऑब्वियसली कि यहाँ पे 2 है तो ये इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज रहा होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे +1 चार्ज रहा होगा। समझा क्या? हाँ मैं तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ
सल्फेट, बस इतना ही है, एकदम इजी सब है, 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे एमसीक्यू में। ये सब लास्ट ईयर के टेक्स्ट के पीछे के सम्स थे, जो 40 सम्स बनाए थे ना उन लोगों ने, वो लास्ट ईयर के पीछे के थे। और इस साल क्या किया, इन सबको सॉल्व एग्जाम्पल में डाल दिया। तुम लोगों को फॉर श्योर सॉल्व एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे सब, इसलिए सॉल्व कर ही देना सब। मिस वो 4 नहीं आएगा एसओ एसओ के ऊपर? 4 नहीं आएगा, ऐसा आएगा ना, SO4 2 माइनस, ऐसे आएगा 2 इंटू लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज रहता है, तो 2 लिखो। सोडियम का वैल्यू कितना है 50.1 प्लस सल्फेट का वैल्यू कितना है 159.6, बस हो गया। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। एनी क्वेश्चन? हाँ, कुछ लोगों ने मुझे आंसर भी भेजा है। पहले वाले का आंसर क्या है? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है प्रियंका। मिस थोड़ा यश बोलो, कंफ्यूजिंग लग रहा है वो। क्या कंफ्यूजन, बोलो मुझे वापस मिस बोलो वो ना। 2 मतलब नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है वो मिस? नहीं देखो, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। देखो NaCl ऐसे क्यों लिखा, एक Na और एक Cl क्यों लिखा? क्योंकि Na के ऊपर +1 चार्ज था, Cl के ऊपर -1 चार्ज था। ओवरऑल मेरा कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? अच्छा, हाँ अगर मिस। मैं यहाँ पे लिखती हूँ Na2SO4, 2 क्यों लिखा पता है? क्योंकि Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी NaSO4, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा पता है कंपाउंड के ऊपर? -1 हो जाएगा ना। मुझे इसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 बना दूंगी, तो अभी ये Na प्लस 2 प्लस हो गया, और SO4 2 माइनस, तो -2, और ये कितना हो गया +2। न्यूट्रल हो गया कि नहीं कंपाउंड? हाँ मिस। हाँ, तो अभी देखो, जब यहाँ पे लिखेंगे, जब यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। अभी CaCl2 का कैसा है, Ca का हो जाएगा लैम्बडा नॉट ऑफ Ca2 प्लस प्लस, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 2 डालने का, लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस, बस खत्म। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Na2SO4, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 डालने का, लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस। अब ये 4 नहीं लिख सकता तू, क्यों? क्योंकि पूरा सल्फेट आयन है कंप्लीट, तो इसके ऊपर ना चार्ज -2 रहता है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली, लैम्बडा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। अभी समझा अच्छा, और यश? मिस अगर वो ब्रैकेट के बाहर 4 होता तो हम लोग लिखते हैं ना? हाँ बराबर, करेक्ट। आगे अगर सपोज ऐसे होता, जैसे Al2SO4 थ्राइस होता, तो कैसे लिखा था? देखो ये 2 था, 2 लिख दिया, ठीक है। अभी Al के ऊपर कितना चार्ज है कैसे पता चलेगा? ये देखो ना 3 दिख रहा है बाहर, तो इसके ऊपर +3 चार्ज था, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लैम्बडा नॉट, ठीक है, लैम्बडा नॉट ऑफ, अभी सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज था, ये 2 दिख रहा है, तो SO4 2 माइनस लिखेंगे। समझा अभी? यस मिस, समझा अभी। हाँ हाँ, एक मिनट, कुछ लोगों ने मुझे आंसर किया है 738। कैसा 738 आया? 738 आंसर आ रहा है, टेक्स्ट बुक में गलत है क्या? 50, क्या किया है तुम लोगों ने? 50.1 इंटू 2 मतलब 2 0 नहीं मैम, वो गलती 100.2। से आया था, मैंने फिर से भेजा है दूसरा आंसर। हाँ हाँ, और दूसरे लोगों ने भी ऐसे कुछ तो ड जैसे आंसर भेजा है मेरे को। 259 आंसर आएगा। कौन है ये? दिवेश। हाँ मैम, 738 कैसा है? हाँ हाँ बराबर है। CaCl2 का आंसर है 256.8,
और सोडियम सल्फेट का आंसर है 259 पॉइंट। किसने मुझे करेक्ट आंसर किया? हाँ, एक ही बंदा है, यश ने बराबर किया आंसर, यश गुरव ने 259.8। आया अभी आंसर सबको? हाँ, एनी क्वेश्चन सो फार? एक और सम ले लूं? एटलीस्ट लिख लो, जब तक 5 मिनट में लिख के तो हो जाएगा क्वेश्चन। चाहिए तो कल करेंगे। बोलू? Ready everyone for the question? Yes, ma'am. लिखो, the molar conductivity of 0.01 molar acetic acid at 25 degrees Celsius is 16.5 per ohm centimeter square per mole. The molar conductivity of 0.01 molar acetic acid at 25 degrees Celsius is 16.5 per ohm centimeter square per mole, full stop. Calculate its degree of dissociation. Calculate its degree of dissociation, मतलब अल्फा, and dissociation constant, मतलब Ka. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant if molar conductivity of acetic acid at zero concentration is molar conductivity of acetic acid at zero concentration is 390.7 per ohm centimeter square per mole। बताओ कैसे करेंगे? क्या क्या दिया हुआ है? ईटा दिया हुआ है ना, ईटा कितना है? 16.5। ईटा नॉट भी दिया हुआ है 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। करोगे ट्राई? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा का क्या है? अल्फा इज इक्वल टू ईटा अपॉन ईटा नॉट। कितना इजी है देखो, खाली सब्स्टिट्यूट करने का है। और के क्या हो जाएगा? क्या निकाला था हम लोगों ने? ईटा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय ईटा नॉट माइनस ईटा। करोगे ये ट्राई बच्चों? ये Yes, तो घर ma'am. पे करो, लेकिन मैं आपको एक हेल्प कर देती हूँ। ईटा का कितना है? 16.5 है, 390 ना, तो इसको हमेशा न्यूमरेटर को बड़ा बना देना। तो इसको क्या करो, 165 इंटू 10⁻⁻1 कर दो, और इसको ना छोटा कर दो। छोटा मतलब इसको 39.07 इंटू 10⁻+1 कर दो। ऐसे क्यों किया मैंने, बोलो? ताकि आपको आंसर बार में नहीं आए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होता है। तो इसको 165 बनाया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। और इसको क्या बना दिया? 39 बना दिया। मतलब इसका ऐसे करो तो ये हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 39.07 इंटू 10⁻²। अभी करना, लॉग एंटी लॉग से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू ट्राई दिस एट होम। कल हम लोग 10:30 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉग बुक वगैरह सब लेके आना कल। लिख लो, इतना घर पे करो, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। कुछ डाउट है किसी को? प्लीज डू रिवाइज एंड कम। थोड़ा सा खाली बुक खोल के देखने का, याद नहीं करना है, बस ओपन द बुक एंड देन डू इट। और जो लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं अच्छे लगते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग फेल हो जाओगे अगर आप ऐसे सोचोगे कि न्यूमेरिकल में ऑप्शन में डाल दूंगा या डाल दूंगी। तो आपको सीखना ही है, इट इज बाय हुक और बाय क्रुक। यू हैव टू लर्न लॉग बुक्स एंड यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल, नहीं तो यू विल फेल इन पेपर 1।
प्लीज अपना वो माइंडसेट चेंज करो एंड प्लीज सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लिख लिया सबने? शुड आई एंड द मीटिंग बच्चों? ओके, बाय Yes, बाय, वेलकम, थैंक यू फॉर सिटिंग नाइसली एंड लिसनिंग नाइसली। कल मिलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग 10:30। चलो बाय बाय, गुड नाइट।